Hello students and welcome back to our third lecture of class 11 chemistry subject. Today we are going to discuss about the laws of chemical combination, but before that let's make a quick revision of what we have studied till now. So in this chapter some basic concept we have studied the concept of matter and its classification. Matter and its classification is very important and very basic thing, because chemistry is everywhere just like matter is everywhere. Like everywhere there is something which is solid, liquid or gas. Okay, in the universe maximum. So there are few places where we cannot use chemistry. Think about that. And which is very simple, where there is no matter there is no chemistry, because chemistry is all about matter only. So if we talk about chemistry over this planet, and then chemistry over other planets, so there is chemistry here, there is chemistry here, there is no chemistry in between, because in between we won't find any matter. So there is no atom, there is no molecules, so there is no chemistry. So chemistry is entitled to atoms and molecules only. All right, and in that way chemistry is like very vast. Like till there are stars, there are planets, there is chemistry, because every star is composed of some gases, some elements, let's say. So, and those elements must have some chemistry. So it's a very vast concept. So matter and its classification. The second thing we have studied is basic physical units, like the 7 basic physical units: length, mass, time, temperature, amount of substance, electric current and luminous intensity. Then we have studied unit conversions. We have studied unit conversions, how to convert centimeter into kilometer, how to convert picosecond into microsecond, etc. So these are the unit conversion thing, and which is very important. Further, we have studied about accuracy and precision. So accuracy and precision was our next topic, and after that we have studied accuracy. Means accuracy is nothing but how close your value is to the true value. Understood? And if you are calculating 3 values, then how close the mean of those 3 values with the true value. मतलब true value से compare करना है हमें, तो true value के जितने पास आपकी value है या आपके values का mean है, जैसे कि आपने वैल्यू कैलकुलेट किया 2.5, 2.0 एंड 3.0, तो इस तरीके से वैल्यूज कैलकुलेट किया आपने. अब इन तीनों का तीनों ही तो कम, और जो हमारा ट्रू वैल्यू है, सपोज वो ट्रू वैल्यू है 2.5, तो अब ये 3 वैल्यू आपने कैलकुलेट की, तो इन तीनों का हम क्या करेंगे, मीन निकालेंगे. इन तीनों का अगर हम मीन निकालेंगे तो कितना आएगा, 2, 2.5 एंड 3. इस तरीके से तीनों का मीन निकालेंगे तो आ जाएगा हमारा 2.5. so which is this. Understood? So 2.5 is the answer, and that is because 2.5 is the mean value of this. और ये वैल्यू जो हमारी मीन वैल्यू है, ये ट्रू वैल्यू से कितनी क्लोजली रिलेटेड है, दैट विल बी दी एक्यूरेसी. एंड प्रिसीजन मतलब कि इन तीनों वैल्यूज में आपस में कितना डिफरेंस है, इसमें 0.5 का, इसमें भी 0.5 का, तो ये प्रिसाइज्ड वैल्यू है, क्योंकि डिफरेंस में चेंजेस ज़्यादा नहीं आया है. तो इस तरीके से हम less precise value, more precise value, less accurate and more accurate, we will always try कि हमारा जो रिजल्ट आए वो more accurate and more precise हो. ठीक है? प्रिसाइज की बात हम तभी कर पाएंगे जब हम एक से ज्यादा वैल्यूज कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी कि अगर हम 3-4 वैल्यूज कैलकुलेट कर रहे हैं तो ही हम प्रिसीजन की बात कर पाएंगे. इफ वी आर कैलकुलेटिंग जस्ट वन वैल्यू, तो हम उसे ट्रू वैल्यू से कंपेयर करेंगे, हम देखेंगे वो एक्यूरेट है कि नहीं. प्रिसीजन हम तभी देख पाएंगे जब हम 4-5 वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो या फिर 2 से ज्यादा कर रहे हो.
दो या दो से ज्यादा। नेक्स्ट वी हैव स्टडीड अबाउट सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स अगेन मैं बता रहा हूं आपको, थोड़ा सा इसके बारे में भी रिवीजन, कुछ बच्चों को डाउट था, उन्होंने मुझसे कमेंट करके पूछा, वहां पे सारी चीजें एक्सप्लेन करने लायक नहीं होती, बट फिर भी इसके मैंने 5 रूल्स बताए थे, तो मैं इसको एक बार क्विक रिवीजन दे देता हूँ। 5 रूल में क्या क्या था? पहला तो सारे नॉन जीरो डिजिट हमारे सिग्निफिकेंट होंगे, जैसे कि 2.561 के पास में 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, एस एफ लिख देता हूं मैं यहाँ पे, सिग्निफिकेंट फिगर 4 सिग्निफिकेंट फिगर 2.561, क्योंकि ये नॉन जीरो नंबर्स हैं। सेकंड, जितने भी जीरोस हैं अगर वो राइट इधर है, ठीक है, लेफ्ट मतलब पहले आ रहा है, जीरो बिफोर अ नॉन जीरो नंबर, जीरो बिफोर अ नॉन जीरो नंबर और जीरो लेफ्ट टू द नॉन जीरो नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो 0.003 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 1 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, 0.003 में। या फिर अगर मैं लिखूं 0.012 में कितने सिग्निफिकेंट होंगे? तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर। ये हमारा सेकेंड रूल था। थर्ड रूल था जीरो इन बिटवीन 2 नॉन जीरो नंबर, 2 नॉन जीरो नंबर के बीच वाले जितने जीरोस हैं वो सिग्निफिकेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल 0.10101। सो यहां पे जो 0.10101 है, यहां पे जो जीरो है पहले, इसको तो हम काउंट नहीं करेंगे बिकॉज ये सेकेंड रूल के हिसाब से लेफ्ट में है, वी विल नॉट काउंट दिस नंबर। बट ये 1 है, देन 0, देन 1, तो ये वाला जीरो, ये वाला जीरो काउंट होगा, एंड इधर वाला जीरो भी 2 नॉन जीरो के बीच में है, 1 और 1 के बीच में है वो, तो वो भी काउंट होगा। सो इस तरीके से टोटल हमारे कितने हो गए? 5। तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर इज प्रेजेंट हियर, लाइक दैट। ओके, सिमिलरली 0.5005 के अंदर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो 2 नॉन जीरो नंबर के बीच वाला जीरो सिग्निफिकेंट होगा। नाउ जीरोस टू द राइट, जो हमारे राइट साइड में, यानी कि जीरो नॉन जीरो डिजिट के बाद में अगर आया, तो 2 तरीके से नॉन जीरो डिजिट के बाद में नंबर आ सकते हैं। वो हो सकते हैं इफ लाइक इट इज लाइक सपोज नॉन जीरो के बाद में हमने नंबर लिखा, तो 1 2 1 2 5 0, एक ये हो गया, और 1 2 5 0.0, एक ये हो गया, या फिर 1 2 5.0, एक ये हो गया। सपोज हमने यहाँ पे 3 नंबर ले लिए। अब तीनों नंबर में जीरोस आए हैं राइट साइड में, बट डिफरेंस क्या है? देखो यहाँ पर ये है 1250। इट्स अ फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ राउंड अप नंबर, नॉट अ डेसिमल नंबर। ये राउंडेड है, इसमें कोई डेसिमल नहीं है, तो ये डेसिमल नंबर नहीं है। डेसिमल नंबर अगर नहीं है, कोई भी नंबर अगर डेसिमल फॉर्म में नहीं है, तो जो राइट वाला जीरो है उसे हम काउंट नहीं करेंगे। If the number is not a decimal number, we will not count the zeros coming to the right of a non-zero digit as significant figure. So first वाले में ध्यान से देखो, 1250 में ये लास्ट वाला जीरो हमारा सिग्निफिकेंट नहीं होगा, एंड दैट इज वाई सिग्निफिकेंट कितने होंगे? स्टार्टिंग के 3, 1 2 5, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आंसर आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड वाले में जब डेसिमल नंबर आ जाएगा तब हम जीरोस को काउंट करेंगे, जितने भी हैं, राइट में हो या उसके बाद नॉन जीरो हो या ना हो, बट राइट वाले नंबर को, राइट वाले जीरोस को हम काउंट करेंगे अगर डेसिमल होगा तो। सो 1250.0, ये 0.0 पॉइंट आ गया, ठीक है। तो पहली चीज की डेसिमल फॉर्म में, डेसिमल फॉर्म में है तो राइट वाले नंबर्स, राइट वाले जीरोस काउंट होंगे। सो ये हो जाएगा टोटल 12500, 5 हो गए टोटल, तो इसके अंदर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। एंड सिमिलरली 125.0, यहां पे भी पॉइंट है, यहां पे भी पॉइंट है, 125.0, ये पॉइंट सारे आपको विजिबल होने चाहिए क्लियरली। ओके, 125.0 में 5 सिग्निफिकेंट, एंड 125.0.0 में 5, एंड 125.0 में
क्योंकि ये पॉइंट के बाद ही है और मतलब डेसिमल में है तो काउंट करेंगे एंड इट विल बी 4 सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये याद रखना। यहां पे थोड़ा सा ट्रिक है कि अगर जीरो जो है वो राइट साइड आया है, नॉन जीरो के बाद आया है और वो डेसिमल फॉर्म में नहीं है तो हम उसे काउंट नहीं करेंगे। अगर कहीं पे भी लिखा हो कि ये है 100 तो 100 में सिर्फ और सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, एक सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। लेकिन अगर लिखा हो 100 पॉइंट, क्योंकि ये डेसिमल फॉर्म में आ गया तो अब तीनों काउंट होगा, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर लिखा हो 100.0 तो इसके अंदर 4 सिग्निफिकेंट है। चारों वैल्यू जो है वो 100 ही है, बट डिफरेंस देखो लिखने का कितना ज्यादा है इसमें, कि इसमें सिर्फ और सिर्फ 100 लिखा है, बहुत ही एग्जैक्ट है। इसमें 100 पॉइंट लिखा हुआ है, यानी कि 100 डेसिमल के साथ में है तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। यहाँ पे 100.0 लिखा है तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, ठीक है। इस तरीके से हम सिग्निफिकेंट फिगर की बात करेंगे। डेसिमल में होगा तो सिग्निफिकेंट फिगर जीरोस काउंट होंगे, और डेसिमल में नहीं है जैसा कि फर्स्ट, तो जीरोस काउंट नहीं होंगे। ये हो गया हमारे 4 रूल्स। फिफ्थ रूल जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी और फोर्थ वाले से थोड़ा मैच करता है। वो ये है कि इफ द नंबर इज एग्जैक्ट, अगर नंबर एग्जैक्ट है, नंबर एग्जैक्ट जैसे कि 100 है, बट ये 100 इस तरीके से लिखा है, बट यहां पर सिर्फ 100 नहीं है, यहां पर लिखा है 100 एप्पल्स सपोज, या फिर 50 पीपल, या फिर 12 ऑब्जेक्ट, ठीक है, या फिर ठीक है, इस तरीके से एग्जाम्पल हो गए। तो अगर किसी चीज के साथ में है कोई ऐसे नाम या प्रोनाउन के साथ में हम इसको यूज कर रहे हैं नंबर्स को जो कि एग्जैक्ट हो, काउंटेबल हो, लाइक एप्पल्स आर काउंटेबल, वी कैन काउंट 1 2 3 4 5, तो 100 एप्पल्स ये ऐसे नंबर, या 50 पीपल भी हम काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 कितने लोग हैं, ऑब्वियसली। सिमिलरली ऑब्जेक्ट, कितनी ऑब्जेक्ट है वो भी हम काउंट कर सकते हैं। तो दीज आर काउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स हमें बस ये बताने होते हैं कि ये नंबर्स जो है वो क्या है, एग्जैक्ट नंबर है। ऊपर वाला नंबर जो है 100 और नीचे वाला जो 100 एप्पल्स है, दोनों में क्या डिफरेंस है कि ये 100 एप्पल्स 100% 100 एप्पल ही है। यहाँ पे 99.99 एप्पल्स नहीं हो सकते, यहाँ पे या तो 100 एप्पल्स होंगे या 99 एप्पल्स होंगे या 101 एप्पल होंगे। ये हमेशा ऐसे ही रहेगा होल नंबर में, कभी ऐसा नहीं होगा 99.5 एप्पल्स हैं, क्योंकि वो उसे हाफ करके काउंट करना इज नॉट द थिंग। सो दीज आर काउंटेबल 1 2 3 4। ऊपर वाला 100 जो है ये थोड़ा शेकी है, ये एग्जैक्ट नहीं है, ये हो सकता है 99.99 का राउंड ऑफ हो, राइट। ऊपर वाला 100 जो है ये हो सकता है कि 99.99 का राउंड ऑफ हो, या फिर ये भी हो सकता है कि 100.4 का राउंड ऑफ हो, ठीक है, 100.40 का राउंड ऑफ हो, 100.1 का राउंड ऑफ हो। तो ऊपर वाला नंबर जो है ये एग्जैक्ट नहीं है, राउंड ऑफ हो सकता है। तो अगर सिर्फ 100 लिखा है तो सिग्निफिकेंट फिगर होगा 1, बट अगर 100 एप्पल्स लिखा हुआ है जो कि एग्जैक्ट है, फिक्स है, तो सिग्निफिकेंट फिगर इस केस में, 50 पीपल के केस में, 12 ऑब्जेक्ट के केस में सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, इंफिनिटी, ठीक है, इंफिनिटी होगा सिग्निफिकेंट फिगर। इंफिनिटी कैसे हो सकता है, क्योंकि अगर मैंने बोला 100 एप्पल्स तो मैं इसको 100 लिख सकता हूं एप्पल्स, मैं इसको लिख सकता हूं 100.0, मैं इसको लिख सकता हूं 100.0000000, ये जीरोस में जितने मन उतने बढ़ा सकता हूं इनफाइनाइट तक, और ये सारे ही सिग्निफिकेंट होंगे क्योंकि मैंने उसको डेसिमल फॉर्म में लिखा है और आगे जीरोस लगा रहा हूं। तो मैंने क्या बताया था यहाँ पे कि डेसिमल फॉर्म में अगर जीरोस लगेगा तो काउंट करेंगे, तो ये हम इनफाइनाइट तक कर सकते हैं, दैट इज वाई ये भी सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो जो एग्जैक्ट नंबर है वो उनके सिग्निफिकेंट फिगर कुछ भी हो सकते हैं, इसके 3 हो सकते हैं, ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पे भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। बस इस 3 सिग्निफिकेंट फिगर को, यानी कि 100 एप्पल्स को हम लिख सकते हैं, इसके सिग्निफिकेंट फिगर अगर एक्चुअली में पूछे तो हम लिख सकते हैं 3 to इनफाइनाइट। ये 100 भी लिख सकते हैं, 100.0 में 4 हो गए, 100.00 में 5 हो गए,
100.000 में 6 हो गए, तो इस तरीके से हम कितने भी लिख सकते हैं। तो इसका आंसर होगा 100 एप्पल्स के सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? 3 to infinite, 3 to infinite होंगे। क्लियर? बट अगर ऑप्शन है आपके पास में, ये एमसीक्यू में आया हुआ है कि 100 एप्पल्स के कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, और उसमें ऑप्शन है 3 और इनफाइनाइट, दोनों ही ऑप्शन है, ए 3 है, बी इनफाइनाइट, तो आप इनफाइनाइट चूज करेंगे। क्लियर? सो इनफाइनाइट is the most precise answer. So these are significant figure. Moving on, हमने पढ़ा था next is scientific notation. Scientific notation हमारा उसके बाद वाला टॉपिक था। Scientific notation मैंने बताया था किसी भी चीज को अगर 10 के पावर में हम एक्सप्रेस करते हैं, जैसे कि एग्जांपल देता हूं मैं एक और scientific notation का। अगर मैंने 1 2 5 6 7 को एक्सप्रेस किया, 1 2 5 6 7, तो इसको अगर मैं काउंट करूं ऐसे, तो 12,567, तो 12,567 को मैं लिख सकता हूं 1 2 5 6 7 into 10 to the power how much? 1 2 3 4 4, ठीक है, 1.2567 into 10 power 4। तो अब इस वाले नंबर को, जिसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना था, यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 5, मैंने ऐसे लिख दिया। अब सपोज इस 5 सिग्निफिकेंट फिगर को हमें कन्वर्ट करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर में, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 5 को 3 में कन्वर्ट करने के लास्ट के 2 हमें, पहले 2 नहीं, लास्ट के 2 हमें ओमिट करने होंगे, रिमूव करने होंगे, इसको बोलते हैं राउंड ऑफ करने होंगे। तो पहले हम इस तरीके से लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन में। नाउ लास्ट वाला 7 हम रिमूव कर देंगे, तो बचेगा क्या हमारे पास? 1.25। अब लास्ट वाला 7 हमने रिमूव किया है, तो इसके पहले है 6, 7 जो है वो 5 से ज्यादा है, तो 6 वाला क्या हो जाएगा? 1 प्लस, तो 257, ठीक है, इस तरीके से आंसर आ जाएगा 257 इंटू 10 to the power 4। तो अब देखो, पहले था 5 सिग्निफिकेंट फिगर में, अब हो गया 1.257, 10 to the power 4। साइंटिफिक नोटेशन में हम ये वाली चीज को काउंट नहीं करते सिग्निफिकेंट फिगर में, हम बस यहाँ पे जितने फिगर हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर, सारे सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। तो ये हो गए 1 2 5 7, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। अब इस 7 लास्ट वाले 7 को हमें फिर से रिमूव करना है, तो क्या करेंगे? 1.2 5, क्योंकि 7 है तो 5 1 प्लस हो जाएगा 6 into 10 to the power 4। So 1.26 into 10 to the power 4 हमारा आंसर आ जाएगा, अगर हम इस वाले नंबर को 5 सिग्निफिकेंट फिगर से 3 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करेंगे तो। एंड लाइक दैट साइंटिफिक नोटेशंस हम एक्सप्रेस करते हैं। साइंटिफिक नोटेशन के मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मैंने ऑलरेडी बताया आपको, उससे रिलेटेड कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बट फिर भी अगर होगा सो यू कैन आस्क मी। Now these were the topics जो हमने फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर में अपने पढ़ लिया है, एंड आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ये बहुत ही बेसिक है, इस पे जितना ज्यादा से ज्यादा टाइम आपको स्पेंड करना है समझने के लिए समझ लो, क्योंकि ये एक बार बस क्लियर करनी होती है लाइफ में। एक बार अगर क्लियर हो गई तो लाइक फॉरएवर रहेगा फ्री माइंड में। तो यहाँ पे अगर आपको टाइम लग रहा है, आपको लग रहा है कि बहुत स्लो चल रहे हो आप, डोंट वरी अबाउट इट, स्टिक टू द प्लान, ग्रेजुअली पढ़ो उसको, ठीक है, बट पढ़ो तो डिटेल्ड मैनर में, एक एक चीज पता होनी चाहिए। Alright, so moving on with our next topic, today's topic, which is laws of chemical combinations. Laws of chemical combinations. So किसी भी केमिकल के कॉम्बिनेशन पे कुछ लॉग होते हैं जो गवर्न करते हैं, राइट? हर चीज का कुछ ना कुछ लॉ होता है, कोई ना कोई एक नियम होता है जो कि नेचुरल होता है, हमें बस उसे समझने की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, हम अपनी सुबह से शाम तक जितनी भी एक्टिविटी करते हैं वो ऐसा क्यों है, लाइक हम सीधे लेटते हैं देन बैठे रहते हैं, अगर हम बैठे रहते हैं और हमें और भी ज़्यादा रेस्ट करना तो हम लेट जाते हैं, हम अपने अर्थ के सरफेस से पैरेलल अपने बॉडी को जब रखते हैं तो हमें ज़्यादा रिलैक्स फील होता है, दैट इज लेटने वाली पोजीशन, ऐसे वाली पोजीशन। जब हम ऐसे रहते हैं तो हमें ज़्यादा रिलैक्स फील नहीं होता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। सो वहाँ पे एक लॉ काम कर रही है, यूनिवर्सल ही है, ग्रेविटी इज यूनिवर्सल। सो सिमिलरली फॉर एवरी कॉम्बिनेशन, कि कोई भी केमिकल जो है वो इस तरीके से रिएक्ट क्यों कर रहा है,
उसके पीछे कुछ लॉज होती हैं, वो गवर्न करती हैं। तो सबसे पहले हम उन सारे लॉज को पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट लॉ है आपका लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में वेरी फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये हमें बाय द नेम इटसेल्फ पता चल रहा है कि मास को कंजर्व करने की हम बात कर रहे हैं, मास को बचाने की बात कर रहे हैं, मास को हम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, मास को हमने कंजर्व करके रखा है। और ये हम करके नहीं रख रहे हैं, ये क्या लॉ है, तो ये ऑटोमेटिक कंजर्व हो रहा है। ठीक है, तो अगर आपने मास को हम क्या करते हैं, हम कभी भी मास को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते और ना ही क्रिएट कर सकते हैं। दैट इज वेरी ऑब्वियस कि अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने वेट गेन किया, आपका वेट था पहले 50 और अब हो गया है 55, तो ये जो 5 kg गेन किया, ये जस्ट बाय ब्रीदिंग या जस्ट बाय डूइंग एक्सरसाइज नहीं हुआ है, ये गेन होने के लिए हमने मैटर एक्सचेंज किया है। सो वी हैव अडॉप्टेड दोज मैटर 5 kg एक्स्ट्रा मैटर फ्रॉम द सराउंडिंग। कहाँ से हम मैटर अडॉप्ट करते हैं, हम जब रिस्पायर करते हैं तो हम मैटर अपने अंदर लेते हैं, और जब हम एक्सेल करते हैं तो मैटर हमारे बॉडी से बाहर जाता है। जब हम खाना खाते हैं तो हमारे अंदर मैटर जाता है, जब हम एक्सक्रीट करते हैं तो मैटर हमारी बॉडी से बाहर जाता है। एंड इन द सेम वे हमारी बॉडी का वेट प्रपोर्शन वगैरह भी चेंज होता है। सो यू डोंट थिंक लाइक कि अगर आप मोटे हो और आप मान लो एक अनहेल्दी पर्सन है और वो सिर्फ भाग रहा है, वो कुछ खा नहीं रहा है, कुछ लूज नहीं कर रहा, वो सिर्फ भाग रहा है, जस्ट बाय डूइंग एनर्जी वो अपने फैट को कम कर ले रहा है। सो बस जस्ट बाय डूइंग सम काइंड ऑफ एनर्जी मैटर का कन्वर्जन हो जा रहा है, तो इट्स नॉट पॉसिबल। सिर्फ आप एनर्जी करके मैटर, आपको अपनी डाइट इनटेक एंड आउटटेक के ऊपर भी ध्यान देना पड़ता है। सो सिमिलरली मैटर एज वी नो that it can neither be created nor be destroyed। अगर हमने 1 kg का हमारे पास में बुक है, हमने इसको बर्न कर दिया सपोज पूरा का पूरा कंप्लीट, यानी 1 kg का जो पेपर है वो हमने बर्न किया, तो पेपर बर्न होने के बाद में क्या बनेगा, ऐश बनेगा और स्मोक बनेगा। तो ऐश और स्मोक का जो वेट होगा टुगेदर, स्मोक जो बनेगा वो तो ऊपर उड़ जाएगा और जो ऐश बनेगा वो काफी हल्का होगा, लाइट वेटेड होगा। तो बुक का जो वेट था वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया स्मोक में एंड ऐश में। अगर स्मोक और ऐश को हमने ट्रैप करके उसका वेट करने की कोशिश किया तो हम देखेंगे कि जो बुक का वेट था उतना ही स्मोक और ऐश का भी है, यानी कि बुक को बर्न करने के बाद में जो प्रोडक्ट्स बने, स्मोक एंड ऐश दोनों का ही जो वेट है वो बुक के वेट के बराबर होगा। एंड दिस अगेन प्रूव कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, but like it can be transferred from one substance to another substance, from one form of a substance to another form of substance। like अगर 1 kg आइस है तो उसको मेल्ट कर दोगे तो वो कितना बनेगा, 2 kg वाटर नहीं, वो 1 kg वाटर ही बनेगा क्योंकि वो आइस 1 kg था। ठीक है तो और क्योंकि आइस के अंदर ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंस इसलिए आ जाता है क्योंकि आइस के अंदर ना बिग बिग गैप्स होते हैं, जब बड़े बड़े जगह होते हैं तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, इसलिए उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। तो बिग बिग गैस में अगर एयर ट्रैप है तो फिर एयर की तो बात हम कर नहीं रहे हैं, तो बट ट्रैप्ड एयर भी आ जाते हैं उसके अंदर, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, इस वजह से डेंसिटी आइस की जो है वो कम हो जाती है। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे ड्यूरिंग अ केमिकल प्रोसेस में, during a chemical process mass of a substance is always conserved, that is it can neither be created nor be destroyed। During a chemical process the mass of a substance is always conserved, that is it can neither be created nor be destroyed। एग्जाम्पल अगर हमने मैग्नीशियम लिया प्लस ऑक्सीजन और यहाँ पे MgO की बात कर रहे हैं। सो मैग्नीशियम है हमारा, मैग्नीशियम का अगर हम एटॉमिक वेट देखेंगे, एटॉमिक मास, तो ये आता है हमारे पास में 24 ग्राम अप्रोक्सीमेटली। ऑक्सीजन जो है वो 16 ग्राम का होता है, बट यहाँ पे O2 है तो ये हो जाएगा
16 इंटू 2 ग्राम, ठीक है, दैट इज 32 ग्राम। ना 32 ग्राम, यहाँ पे जो मैग्नीशियम है ये है 24 प्लस ऑक्सीजन है 16, तो ये हो गया 40 और इधर भी होना चाहिए 40, ये 32, ये 24, 32 एंड 24 इज 56। ओ माय गॉड, इट्स नॉट 40। तो अब क्या प्रॉब्लम हो गई? प्रॉब्लम ये हो गई कि हमने इस इक्वेशन को बैलेंस नहीं किया है। सो वी नीड टू बैलेंस इट फर्स्ट, 2 mg एंड 2 MgO। सो यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, ड्यूरिंग अ, यहाँ पे हम नया एक चीज ऐड करेंगे, बैलेंस्ड केमिकल, या फिर इसको हम लिख सकते हैं ड्यूरिंग अ केमिकल प्रोसेस के जगह में हम लिख सकते हैं ड्यूरिंग अ बैलेंस केमिकल प्रोसेस, ठीक है, ड्यूरिंग अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख सकते हैं हम, इक्वेशन ज्यादा सही रहेगा, बट कोई बात नहीं। सो अगर हमारा इक्वेशन बैलेंस है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इक्वेशन बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस करने का रीजन ही यही है कि अगर हम बैलेंस नहीं करेंगे इक्वेशन को तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के वो नहीं रहेगा, एप्लीकेबल नहीं रहेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एंड ये तो यूनिवर्सल लॉ है ना, ये तो एप्लीकेबल होना चाहिए। सो 2 mg दैट विल become how much? This will become 2 into 24 gram, that will be 48 gram in total. This is 2 into 16 gram, that will be 32 gram in total, and here we have 24 and 16, ये तो MgO हो गया, बट ये ट्वाइस है तो ये कितना हो जाएगा 80, क्योंकि अंदर वाला 40 एंड बाहर वाले 2 से मल्टीप्लाई होगा 80 ग्राम। सो 80 इधर है, 32 एंड 48, दिस विल अगेन, इसको हम ऐड करेंगे तो 80 ग्राम हो जाएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सिमिलरली यू टेक एनी एग्जांपल लाइक मीथेन की बर्निंग का एग्जांपल ले लेते हैं। सो मीथेन को अगर हम बर्न करेंगे, क्योंकि मीथेन एक हाइड्रोकार्बन है एंड इसका बर्निंग हमें क्या देगा हमेशा CO2 प्लस वाटर वेपर, सो CH4, तो यहाँ पे हम बैलेंस करेंगे, इसको ट्वाइस करेंगे, देन C एक है, 4 हाइड्रोजन है तो ये 4 हाइड्रोजन हो गए, ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन है 4, तो यहाँ पे हम कर देंगे 2। Is that clear? Now this is a balanced chemical equation. Here carbon is 12 plus हाइड्रोजन जो है वो 1 into 4, तो 1 into 4 क्यों? क्योंकि एक हाइड्रोजन का वेट होता है 1 ग्राम, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 ग्राम होता है और 4 हाइड्रोजन है तो 1 into 4, सो टोटल हो गए हमारे पास में 16 ग्राम इन टोटल। यहां पे देखो 2O2 है, 2O2, 2 मॉलिक्यूल्स हैं किसके? O2 के, तो 2 बाहर लिखेंगे, देन O2 16 into 2, तो अंदर वाला हो जाएगा 32 एंड 32 का भी ट्वाइस 64 ग्राम, तो ये हो गया 16 एंड 64, तो टोटल जो हमारा रिएक्टेंट साइड आया वो कितना आया 64 एंड 16 80 ग्राम आ गया। अब प्रोडक्ट साइड भी 80 ग्राम आना चाहिए, लेट्स सी, ये है 12 कार्बन प्लस O2 16 into 2, सो 16 into 2 हो गया कितना 32, 32 में 12 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 44 ग्राम, सो 44 ग्राम आ गया हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का वेट, एंड देन वाटर, वाटर में आगे 2 लिखा हुआ है, H2 है यानी कि 1 into 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो अंदर वाला जो वाटर है ये कितना हो गया 2 प्लस 16 18 हो गया, और 18 into 2 कितना हो गया 36, तो 36 ग्राम हो गया वाटर। सो 36 एंड 44 अगेन 80, 64 एंड 16 80, सो रिएक्टेंट के साइड में एंड प्रोडक्ट के साइड में वेट जो है वो हमेशा बराबर होता है, जितना वेट लेंगे आप उसके लिए रिएक्टेंट के लिए उतना ही वेट का हमें प्रोडक्ट मिलेगा, तो यानी कि ड्यूरिंग द केमिकल प्रोसेस कोई नया वेट बना नहीं है और ना ही पुराना वेट डिस्ट्रॉय हो गया है। अगेन मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल इक्वेशन, ड्यूरिंग अ केमिकल प्रोसेस, एंड इट शुड बी बैलेंस, बैलेंस में ही होता है, कोई भी रिएक्शन हमेशा बैलेंस में होता है, बट हमें उसको बैलेंस करना पड़ता है, वो ऐसा नहीं है कि हम बैलेंस नहीं करेंगे तो वो बैलेंस नहीं होगा। जब भी कभी कोई केमिकल रिएक्शन होगा, जब भी कभी मीथेन बर्न होगा तो वो हमेशा बैलेंस फॉर्म में ही बर्न होगा, ठीक है, वो लॉ है, उसका नेचर है वो। सेकंड, लॉ ऑफ
डेफिनेट प्रपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन को हम लोग लिखते हैं कांस्टेंट कंपोजिशन के फॉर्म में भी, मतलब लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन बोल सकते हैं या लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, इन अ कंपाउंड, ना कंपाउंड की डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। कंपाउंड, इन अ कंपाउंड टू और मोर एलिमेंट्स आर कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो। ठीक है, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट को कंबाइन करते हैं फिक्स्ड रेशियो में। फिक्स्ड रेशियो वाला जो लॉ है वो यहां से आया कांस्टेंट प्रोपोर्शन में, कि इन अ कंपाउंड एलिमेंट्स will always be in a fixed proportion by mass। वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन में रहेंगे बाय मास। एग्जाम्पल H2O, वाटर का एग्जाम्पल लेते हैं ना। यहां पे दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन है, तो दो हाइड्रोजन का हो गया यानी कि H रेशियो O हम देखेंगे। तो हाइड्रोजन का वेट कितना हो गया, हाइड्रोजन का वेट हो गया 2 ग्राम, क्योंकि 2 है, H2 है, H का होता है 1 ग्राम, बट 2 है तो 2 ग्राम। ऑक्सीजन सिंगल एक ही ऑक्सीजन है तो कितना हो गया 16 ग्राम। तो 2:16, यह कितना आ जाएगा 1:8 बाई मास। वाटर के अंदर 1:8 मास हमेशा रहेगा, ये चीज याद रखना। 1:8 मास मतलब अगर ये 1 है तो ये 8, ये 2 है तो ये 16, ये 3 है तो ये 24, ये 4 है तो ये 32, लाइक दैट। इस तरीके से हमेशा चलेगा। तो सपोज इस तरीके से मैं क्वेश्चन एक पूछ देता हूं यहां पे डायरेक्ट, कि इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, 100 ग्राम हमने पानी लिया, प्योर वाटर है यहाँ पे, और कोई मिक्सचर नहीं है, ना उसके अंदर कोई सॉल्ट है, कोई शुगर है, कोई गैस है, कुछ भी नहीं है, प्योर वाटर अगर हमने 100 ग्राम लिया है, इन 100 ग्राम ऑफ वाटर कॉमा व्हाट इज द वेट ऑफ ईच हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, what is the weight of hydrogen and oxygen atoms together। atoms, अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम को अलग अलग कर दिया जाए तो फिर कितना वेट आएगा। देखो 100 ग्राम है टोटल वाटर का, तो अब हाइड्रोजन का वेट कितना होता है, हाइड्रोजन का वेट टोटल वेट है मान लो H2O, तो टोटल वेट हमने रेशियो क्या देखा है 1:8, तो इसका वेट अगर 1 ग्राम है तो इसका होना चाहिए 8। 1:8 हमें रेशियो याद है अगर, या फिर हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हम टोटल आ जाएगा ये। हाइड्रोजन का वेट होगा, वेट ऑफ हाइड्रोजन विल बी 1/9 ऑफ 100 ग्राम एंड वेट ऑफ ऑक्सीजन विल बी 8/9 ऑफ 100 ग्राम। ये चीज यहां पे समझ में आई आपको कैसे, 1:8, 1 पोर्शन हाइड्रोजन का, 8 पोर्शन ऑक्सीजन का, टोटल कितने पोर्शन हो गए 9। तो 9 में से टोटल कितने पोर्शन 9 में से हाइड्रोजन कितने पोर्शन है, हाइड्रोजन है 1 पोर्शन, तो कोई भी पोर्शन हमें देगा। यहां पे जो पोर्शन गिवन है वो 100 ग्राम, 100 ग्राम अगर वाटर है हमारे पास में तो उसके अंदर 1/9 इंटू 100 ग्राम होगा हाइड्रोजन, प्लस 8/9 इंटू 100 ग्राम होगा ऑक्सीजन। ये चीज फिक्स है, चाहे कितने भी वैल्यूज हमें दे दो, 1/9 मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन का वेट आ जाएगा, और 8/9 मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन का वेट आएगा। इज दैट क्लियर, चाहे कितना भी वेट हो। इसको 100 की जगह अगर हम 90 ग्राम लेते हैं तो 90 ग्राम में क्या होता, 10 ग्राम होता हमारा हाइड्रोजन और 80 ग्राम होता ऑक्सीजन। 90 में से 90 ग्राम अगर हमने वाटर लिया है तो उसके अंदर, वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन का कंट्रीब्यूशन है, जबकि हाइड्रोजन एटम ज्यादा है, बट हाइड्रोजन एटम का जो कंट्रीब्यूशन उसकी वजह से 10 ग्राम हो रहा है, और ऑक्सीजन एटम के कंट्रीब्यूशन से 80 ग्राम। सो ओवरऑल द वाटर, इफ इट इज 90, हाइड्रोजन विल बी 10 and oxygen will be 80। Is that clear? And this is law of
डेफिनेट प्रपोर्शन, इट विल ऑलवेज बी डेफिनेट। और ये मैं सिर्फ वाटर का एग्जांपल ले रहा हूं, बट यू कैन टेक एनी एग्जांपल लाइक एनी कंपाउंड। सो इन एनी कंपाउंड द वेट will always be in proportion to each other, और वो फिक्स रहेगा irrespective कि वाटर हमें कहां से ऑब्टेन हो रहा है। वाटर हमें ग्लूकोज हम बर्न करते हैं तब भी होता है, मीथेन बर्न करेंगे तब भी वाटर मिलेगा, इथेन बर्न करेंगे तब भी वाटर मिलेगा। हर वाटर का यही हाल है कि उसमें जो रेशियो होगा बाई मास 1/8 होगा, 1:8। क्लियर? सो दिस इज लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन या कांस्टेंट कंपोजिशन। Moving on toward the third law. Third law is law of multiple proportion. Law of multiple proportion says that when two elements forms two or more compounds like hydrogen and oxygen forms। यहां पे मैंने लिखा जब दो एलिमेंट दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बनाए, जैसे कि एग्जाम्पल है मैंने लिया हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बनाते हैं H2O, जिसको हम लोग बोलते हैं वाटर या फिर हाइड्रोजन ऑक्साइड। H2O is water और हाइड्रोजन ऑक्साइड H2O2 is हाइड्रोजन peroxide। सो हाइड्रोजन ऑक्साइड है यहां पर वाटर एंड हाइड्रोजन peroxide। दोनों में क्या डिफरेंस है कि यहां पे H2O है, यहां पे H2O2 है, दोनों ही डिफरेंट कंपाउंड है, याद रखना। ये बहुत ही अलग कंपाउंड है इससे। इट इज ड्रिंकेबल, दिस इज नॉट। ये ड्रिंकेबल नहीं है, पॉइजनस हो जाएगा अगर पिएंगे तो। क्या है ये क्लीनिंग वगैरह क्लिनजिंग के लिए काफी काम आता है H2O2 हाइड्रोजन peroxide। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स जो होते हैं, फेस वॉश वगैरह जो होते हैं, सोप में भी काफी हद तक यूज किया जाता है, तो इट्स अ क्लिनजिंग एजेंट। ओके, एंड सिर्फ बॉडी क्लिनजिंग के लिए नहीं, अलग अलग तरह के टूथ एक वगैरह में भी क्लिनजिंग के लिए डेंटिस्ट वगैरह यूज हाइड्रोजन peroxide मैक्सिमम ऑफ टाइम। समटाइम्स जब बहुत ही ज़्यादा आपको कोई चोट लग गई या फिर उसके मेडिकल टर्म्स में भी फॉर द क्लिनजिंग ऑफ दैट वुंड वी यूज, आई मीन डॉक्टर्स यूज, फिजिशियन यूज हाइड्रोजन peroxide, सो इट्स अ क्लिनजिंग एजेंट। सो वाटर एंड हाइड्रोजन peroxide दोनों हमने लिया, दोनों ही किससे बने हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, याद रखना। तो इस लॉ का ये कंडीशन है कि अगर दो एलिमेंट हमने लिए लाइक हाइड्रोजन ऑक्सीजन और दोनों ने दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बनाए और दोनों ही कंपाउंड के अंदर इंपॉर्टेंट क्या है यहां पे देखना, एंड वेट ऑफ वन एलिमेंट must be identical in all compounds formed, and weight of one element, एक एलिमेंट का वेट जो है वो आइडेंटिकल यानी कि सेम होना चाहिए सारे कंपाउंड में। जैसे कि हमने कंपाउंड बनाया हाइड्रोजन ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन peroxide, और दोनों में ही देखो सबसे ज्यादा जो मतलब जो आइडेंटिकल वेट है वो किसका है? H2 का। वाटर के अंदर भी हाइड्रोजन 2 ग्राम है और इसके अंदर भी हाइड्रोजन 2 ग्राम है, दोनों ही जगह H2 है, तो दोनों ही जगह 2-2 ग्राम है हाइड्रोजन। अगर ऐसा हुआ तो लाइक यहां पर लिखेंगे इन H2O 2 ग्राम हाइड्रोजन एटम्स are present, comma, and in H2O2 2 ग्राम हाइड्रोजन एटम are present। इसमें भी 2 ग्राम, इसमें भी 2 ग्राम हाइड्रोजन एटम। तो then लास्ट में then the other remaining element
have simple whole number ratio by mass। अब जो दूसरा एलिमेंट बचा उसके अंदर सिंपल होल नंबर रेशियो बाय मास होना चाहिए। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो दोनों में 2-2 ग्राम है, तो इसको उसकी बात नहीं कर रहे, बात कर रहे हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन यहाँ पे O है सिर्फ, तो ये हो गया हमारा 16। तो O यहाँ पे मैं लिखूंगा इस तरीके से, O इन H2O कितना है 16 ग्राम, एंड O इन H2O2 कितना है ये, H2O2 में कितना है, H2O2 है तो 32 ग्राम। तो यानी कि हमने देखा वाटर का 16 ग्राम वाला और इसका 32 ग्राम वाला दोनों ही किस रेशियो में है, 1:2। यानी कि if when we are taking two elements which forms two or more compounds, जैसे कि H और O ने हाइड्रोजन ऑक्सीजन ने 2 कंपाउंड बनाए और दोनों ही कंपाउंड में H2H2 है, ये होना चाहिए। अगर कोई सा भी और दूसरा कंपाउंड बना रहा है उसमें भी एक एलिमेंट सेम होना चाहिए, सेम मास होना चाहिए दोनों ही कंपाउंड में। तो यहाँ पे हमने हाइड्रोजन का मास सेम लिया है दोनों में, तो H2H2, तो H2H2 को अगर हम हटा देंगे तो बचेगा क्या, ऑक्सीजन का 16 एंड उसका 32, और ये दोनों सिंपल होल नंबर रेशियो में रहेगा। 1:2 इज सिंपल होल नंबर रेशियो, ये हमेशा सिंपल होल नंबर रेशियो ही रहेगा 1:2। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इज दैट क्लियर? और बुक में और भी एग्जांपल्स गिवन हैं, तो उन एग्जांपल को भी देखिए। इनफैक्ट कार्बन और ऑक्सीजन के 2 एलिमेंट बनाओ, कार्बन ऑक्सीजन के बनाओगे आप तो कैसे बनाओगे, एक बनेगा कार्बन एंड ऑक्सीजन का, एक बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और दूसरा बनेगा CO कार्बन मोनोऑक्साइड। दोनों के अंदर कार्बन जो 12-12 ग्राम है, ऑक्सीजन देखो तो यहाँ पे 32 ग्राम है, यहाँ पे 16 ग्राम है। अगेन 1:2 या 1:2, तो अगेन सिंपल होल नंबर रेशियो। इसी तरीके से सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड का देखो तो उसमें भी सिंपल होल नंबर रेशियो आएगा, ठीक है। इसी तरीके से डिफरेंट S और O में किसी भी कंपाउंड में, कार्बन और हाइड्रोजन में करके देखो तो भी सिंपल होल नंबर रेशियो आएगा। सो दैट्स द लॉ ऑफ मल्टीपल proportion. In many other helping books, helping book की बात कर रहा हूं मैं, और वी कैन से रेफरेंस बुक जितनी भी है अलग, ठीक है, एक गाइड बुक जो होती है, तो वो जो बुक है उसके अंदर एक और लॉ दिया है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के बाद में दिया है या पहले भी दिया हो सकता है, दैट इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। That law is not so important based on the syllabus and curriculum of our 11th class according to CBSE. That law is not in our syllabus, so we don't have to go through that. But if you are interested, you can just read it out. And अगर doubt हो तो आप मुझसे पूछ भी सकते हो. But हम उसे क्लास में डिस्कस करते नहीं है because it is not a part of our syllabus. So let's talk about the next law. ये थर्ड था, इसके बाद में फोर्थ लॉ के बारे में बात करते हैं। फोर्थ लॉ जो है वो है गे-लुसाक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। फोर्थ इज गे-लुसाक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। So Gay-Lussac's law of combining volumes and Avogadro law, ये दोनों ही लॉ काफी ज्यादा सिमिलर है एक दूसरे से, एंड इसको स्टार्ट करेंगे, it will be a long topic, so let's not start this law right now. And Gay-Lussac's law and Avogadro law, ये दो लॉ आपके बचे हुए हैं, Avogadro hypothesis and this law we will discuss in our next video lecture. So till then आप इस वीडियो को देखो। नेक्स्ट चीज मुझे जो आपसे इंपॉर्टेंट बात करनी है वो ये है कि फॉर एवरी वीडियो लेक्चर यू शुड राइट द नोट्स। अपने नोट्स जो है वीडियो लेक्चर में जो भी मैं लिखा रहा हूँ या जो मैं बोल रहा हूँ, इनफैक्ट वो भी कुछ एक शॉर्ट हैंड टाइप में एक प्रॉपर आपको नोट्स क्रिएट करना है फेयर कॉपी में।
अगर आपके पास में फेयर कॉपी नहीं है सो आप फिलहाल के लिए रफ में उसे यूज़ करो। ये सारे वीडियो लेक्चर के आपको नोट्स बनाने हैं रफ में। रफ करने के बाद जब मार्केट नॉर्मल हो जाएगा, लॉकडाउन वगैरह ओपन हो जाएंगे, तब आप फेयर कॉपी लेके इसको फेयर करना। एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी विद मी। आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था 11th एंड 10th का गैप, सो यू हैव टू बी विद मी। जैसे मैंने आज ये लेक्चर दिया तो आपको ये लेक्चर आज ख़त्म करना है। विद इन 2-3 डेज आपको ये सब जितने भी चीज़ें हैं वो सब वाइंड अप करना है, क्योंकि फिर नेक्स्ट लेक्चर आ जाएगा, फिर वो नहीं आप पढ़ पाओगे, फिर उसके भी 2-3 दिन के बाद एक और लेक्चर आ जाएगा। तो ऐसे लेक्चर कई सारे होते जाएंगे, क्लास निकलती जाएगी एंड यू विल बी लाइक लॉस्ट। एट द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन जब आएगा तो हमें लगेगा कि यार हमने पढ़ा नहीं था वो टॉपिक। सो यू हैव टू बी विद मी ऑल द टाइम। थोड़ी सी ज़्यादा जल्दी नहीं कर रहा हूँ मैं, आराम आराम से आपको पढ़ा रहा हूँ आप भी, बट पढ़ो ग्रेजुअली मेरे साथ इस चीज़ को पढ़ो, ठीक है। कॉपीज़ आपको बनानी है वो आप ध्यान रखना, एंड डाउट्स जितने भी हों एनसीईआरटी के वो सब सॉल्व करो। असाइनमेंट मैं आपको दूंगा, सेकंड लेक्चर का एंड थर्ड लेक्चर का दोनों का असाइनमेंट मैं आपको भेजूंगा। थैंक यू।